بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ الحوثیوں سے دنیا کی انرجی سیکیورٹی کو خطرہ، فوری لگام کسی جائے۔ آئل سائٹ پر حملے کے بعد سعودی عرب نے لکھا سیکیورٹی کونسل کو خط۔ الحوثیوں نے کہا دنیا جانتی ہے سعودی عرب یمن میں جارحیت کر رہا ہے، اگلا حملہ اور زیادہ دردناک ہوگا۔ سیریا میں اسرائیل کا ایک اور ہوائی حملہ، ایران کے حامی 8 فائٹرز ہلاک۔ رشیا نے سمندری حدود کی خلاف ورزی پر امریکی جہاز کو مار بھگایا، ماسکو کا دعویٰ۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے دفتر کی گیٹ کو کار سے ٹکر دے دی گئی، دہشت گرد کارروائی کا شبہ۔ جو بائیڈن نے کہا ٹرمپ حکومت ٹرانزیشن کے عمل میں سنجیدگی دکھا رہی ہے، نئی حکومت غلط پالیسیاں چھوڑ دے، روحانی نے کیا مطالبہ۔ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ، اسلام آباد نے تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا، کہا پہلے فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ ریاستوں کو رات کے کرفیو کا اختیار، لاک ڈاؤن کی اجازت نہیں، وزارت داخلہ کی نئی کووڈ گائیڈ لائن۔ انڈیا کے انفیکشنز میں 44,000 کا اضافہ، سینئر کانگریس لیڈر احمد پٹیل کا کووڈ پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جدہ کے قریب ایک آئل فیسلٹی پر الحوثیوں کے حملے کے بعد سعودی عرب نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ دنیا کی انرجی سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کو الحوثیوں سے لاحق خطرے پر فوری توجہ دے اور اسے روکے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب کے سفیر عبداللہ المعلمی نے 15 رکنی سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنی زمین اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کوششوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ اس خط میں کہا گیا کہ اس دہشت گرد حملے کے لیے ایران کی مدد رکھنے والے الحوثی ذمہ دار ہیں۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے بھی جدہ حملے پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ انہیں انرجی سیکیورٹی کو لاحق خطروں کو روکنے کے لیے چوکس رہنے کی یاد دلاتا ہے۔ اس حملے میں جدہ کے قریب ایک آئل فیسلٹی کو بھاری نقصان پہنچا، ایک عہدیدار کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ الحوثیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سعودی عرب کی جارحیت اور اس کی طرف سے یمن کی ناکہ بندی کا جواب ہے۔ اس حملے کے بعد آئل فیسلٹی میں دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ اس دوران الحوثیوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی کسی بھی جارحیت کا جواب دیں گے۔ الحوثیوں کی انصار اللہ تحریک کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ٹویٹر پر کہا کہ سعودی حکومت اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ وہ یمن میں جارح طاقت ہے اور یمنی عوام کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب نے کس طرح یمن کے خلاف جارحیت کی ہے۔ جب تک سعودی عرب اپنے رویے کو برقرار رکھے گا، ہماری طرف سے اس طرح کے حملوں کا اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس دوران الحوثیوں کے انصار اللہ تحریک کے ایک اور لیڈر علی القرمون نے المیادین ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ الحوثیوں کی طرف سے اگلا حملہ اور زیادہ دردناک ہوگا۔ سعودی عرب کی آرامکو کمپنی نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر الحوثیوں کے تازہ حملے سے اس کے آئل ٹینک میں ایک سوراخ پڑ گیا ہے اور دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور کافی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی گئی۔ سعودی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے بحر احمر یا ریڈ سی میں الحوثیوں کی طرف سے بچھائی گئی 5 مائنز کو تباہ کر دیا ہے۔ اتحاد نے کہا کہ یہ مائنز ایرانی ساختہ صدف مائنز کی طرح تھی۔ اتحاد کے ایک عہدیدار نے کہا کہ الحوثی سمندری سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔
जर्मनी के दारुल बर्लिन में एक कार के जरिए चांसलर एंजेला मर्कल के दफ्तर की गेट को टक्कर दे दी गई। इस टक्कर के बाद इलाके को घेर लिया गया और दर्जनों पुलिस गाड़ियां मकाम पर पहुंच गईं और फायर इंजन को भी भेज दिया गया। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं मिल सकी है। ये वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया है जब यूरोप में हालिया महीनों में कई हमले हुए हैं, जिसके बाद चौकसी अख्तियार की गई है। 29 अक्टूबर को फ्रांस के नीस शहर में चाकू से एक हमले में 3 लोगों को हलाक कर दिया गया था। 4 नवंबर को ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में एक 20 साल के नौजवान ने फायरिंग करते हुए 4 लोगों को हलाक कर दिया था। एंजेला मर्कल ने ताज़ा हमले को दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। इसराइल ने सीरिया में एक और हमला करते हुए ईरान के हामी 8 फाइटर्स को हलाक कर दिया है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई। इस हमले में दमिश्क के करीब हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया, जिस पर ईरानी फोर्सेस और हिजबुल्लाह का कंट्रोल था। ये मालूम नहीं हो सका कि मरने वालों का ताल्लुक किस मुल्क से है। इसराइल वक्फे से सीरिया में इस तरह के हमले कर रहा है। इसराइली मीडिया में भी कहा गया कि जोलान पहाड़ियों के करीब रात 11:50 पर यह हमला किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने कहा है कि व्हाइट हाउस हुकूमत मुंतकिल करने के मामले में संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। एक दिन पहले खबर आई थी कि ट्रंप ने मुताल्लिका डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि वो बाइडेन टीम के साथ ट्रांजिशन का अमल शुरू करे। इसके बावजूद ट्रंप अपने इस नुक्ता नज़र पर कायम हैं कि इलेक्शंस में धांधलियां हुई हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका की नई हुकूमत ट्रंप की गलत पॉलिसियों और दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत करेगी जो उन्होंने ईरान के खिलाफ इख्तियार की थी। तेहरान में एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईरानी कौम 2 मुक़द्दस दिफा की तारीख रखती है। एक 1980 में इराक की तरफ से थोपी गई जंग है और दूसरी ट्रंप के दौर में मुआशी जंग है, और दोनों मामलात में ईरान कामयाब बनकर उभरा। ईरान की वजारत खारजा ने ईरान के खिलाफ एक मुहिम चलाने और पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका की कोशिशों की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने ट्विटर पर कहा कि खुद अमेरिका में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लेकिन ईरान पर खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाए जाते हैं। रशिया ने दावा किया है कि उसके एक समुद्री जहाज ने अमेरिकी नेवी के एक डिजास्टर जहाज को जापान के करीब समंदर में रशिया की हुदूद में दाखिल होने पर मार भगाया है। रशिया ने इल्जाम लगाया कि अमेरिकी जहाज यूएसएस जॉन मैकीन पेट्रोग्रेड के इलाके में उसके समंदरी हुदूद में 2 किलोमीटर तक अंदर आ गया था, जिसके बाद उसे टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने की वार्निंग दी गई, जिसके बाद यह जहाज बाहर निकल गया। दूसरी तरफ यूएस नेवी ने अपनी तरफ से किसी भी गलत हरकत से इनकार करते हुए कहा है कि इसके जहाज को मार भगाने की खबर गलत है। ये वाकया मंगल के दिन पेश आया। जिस जगह ये वाकया पेश आया वो रशिया, जापान और कोरिया के करीब है। रशिया की वजारत दिफा के एक अहदेदार ने बताया कि उसके डिजास्टर जंगी जहाज एडमिरल वेनोग्राफ ने राब्ते के चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी जहाज को खबरदार किया था। अमेरिकी नेवी के एक अहदेदार ने रशिया के इस बयान को झूठ करार दिया है, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के जहाज को मार भगाया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी भी रशिया जैसे गैर कानूनी दावों के सामने नहीं झुकेगा और उन्हें कबूल नहीं करेगा। ऐसे वाकयात कभी कभार ही पेश आते हैं। रशिया और अमेरिका दोनों ने इस सूरत हाल के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। मुसलसल ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान पर इसराइल को कबूल करने के लिए ज़बरदस्त दबाव है। ये दबाव सऊदी अरब के इत्तेहादी मुल्कों और अमेरिका की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने अब तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि इस्लामाबाद ने कह दिया है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती। इस तरह के दावों में तेज़ी आ गई है कि अरब इत्तेहाद के मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान पर इस हवाले से काफ़ी दबाव है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने इस दौरान एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद उस वक्त तक इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेगा जब तक एक आज़ाद और मजबूत फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती जो फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हो। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की पुरज़ोर तायद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में एक बयान देते हुए पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया है कि जब तक फ़लस्तीनी अवाम के इत्मीनान के मुताबिक फ़लस्तीन मसले का हल नहीं निकाला जाता, पाकिस्तान
पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। चौधरी ने कहा कि मुस्तकिल अमन के लिए ये ज़रूरी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ओआईसी की करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल निकाला जाए और 1967 की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए और तमाम मामलात हल किए जाएँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के एक रुकन और लुकिड पार्टी के एक लीडर ने इन खबरों की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इतवार को सऊदी अरब का दौरा किया और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। खबरों में कहा गया कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ भी सऊदी अरब के इस दौरे में नेतन्याहू के साथ थे, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत ने सरकारी तौर पर इस खबर को गलत बताया है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अलहूसियों से दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा, फौरी लगाम कसी जाए। ऑयल साइट पर हमले के बाद सऊदी अरब ने लिखा सिक्योरिटी काउंसिल को खत। अलहूसियों ने कहा दुनिया जानती है सऊदी अरब यमन में जारहियत कर रहा है, अगला हमला और ज्यादा दर्दनाक होगा। सीरिया में इसराइल का एक और हवाई हमला, ईरान के हामी 8 फाइटर्स हलाक। रशिया ने समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी जहाज को मार भगाया, मॉस्को का दावा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के दफ्तर की गेट को कार से टक्कर दे दी गई, दहशतगर्द कार्रवाई का शुबा। जो बाइडेन ने कहा ट्रंप हुकूमत ट्रांजिशन के अमल में संजीदगी दिखा रही है, नई हुकूमत गलत पॉलिसियां छोड़ दे, रूहानी ने किया मुतालबा। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव, इस्लामाबाद ने ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया, कहा पहले फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। रियासतों को रात के कर्फ्यू का इख्तियार, लॉकडाउन की इजाजत नहीं, वजारत दाखिला की नई कोविड गाइडलाइन। इंडिया के इन्फेक्शंस में 44,000 का इजाफा, सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का कोविड पेचीदगियों की वजह से इंतकाल। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इथियोपिया में गड़बड़ से मुतासरा इलाके तिग्रे के मिलिटेंट्स के लिए हथियार डालने की डेडलाइन खत्म हो गई है। इथियोपिया की हुकूमत ने यह डेडलाइन दी थी। इथियोपिया के वजीर आजम अबी अहमद ने बातचीत के जरिए मसला हल करने के लिए आलमी अपीलों को नजरअंदाज कर दिया है और कहा है कि मुल्क डेडलाइन खत्म होने के बाद अपने तरीके से इस मसले को हल करेगा। इस तरह ऐसे अंदेशे पैदा हो गए हैं कि इथियोपिया की फौज एक जबरदस्त ऑपरेशन करेगी। वजीर आजम अबी अहमद ने कहा है कि हम इज्जत के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहते हैं कि वो हमारे अंदरूनी मामलात से दूर रहें।
बात करते हैं कोविड 19 की। इंडिया के कोविड 19 केसेस 92 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस दौरान मुल्क के एक्टिव केसेस में 6000 का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 44,376 नए केस रिकॉर्ड किए गए। अब तक कोविड 19 से मुतासर होने के बाद ठीक होने वालों की तादाद 86,42,000 हो गई है। वजारत सेहत की तरफ से जारी अपडेट में कहा गया कि मुल्क में अब तक 92,22,000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। एक्टिव केसेस बढ़कर 4,45,000 के करीब हो गए हैं। मुसलसल 15वें दिन एक्टिव केसेस 5 लाख से कम रहे। मुल्क का रिकवरी रेट 93.72% है, जबकि डेथ रेट 1.46% है। ICMR ने बताया कि मुल्क में 13 करोड़ 48 लाख कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 109 मौतें दिल्ली में हुई हैं। बंगाल में 49, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 33 और महाराष्ट्र में 30 लोगों की जान गई है। मुल्क की कई रियासतों में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक दिन पहले एक मीटिंग करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके बाद वजारत दाखिला की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई। इन गाइडलाइंस के मुताबिक रियासतों को इख्तियार दिया गया कि वो सूरत हाल को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगाएं, लेकिन रियासतों से कहा गया कि वो मरकजी हुकूमत की इजाजत और उससे मशवरे के बगैर लॉकडाउन ना लगाएं। वजारत दाखिला की इस गाइडलाइंस के मुताबिक इन पर दिसंबर की पहली तारीख से अमल होगा और 31 दिसंबर तक फिलहाल ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी। इन गाइडलाइंस का मकसद ये है कि कोविड केसों में इजाफे को रोका जाए और चौकसी बढ़ाई जाए। वजारत दाखिला ने कंटेनमेंट जोन्स के लिए सख्त कायदे बनाए हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को इजाजत दी है कि वो मकामी सतह पर पाबंदियां लगाएं, जिनमें रात का कर्फ्यू शामिल हो सकता है। कोविड 19 की रोकथाम के लिए बाज़ इलाकों में सर्वेलेंस टीमें बनाई गई हैं और घर घर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन वजारत दाखिला ने यह बात साफ की कि गैर कंटेनमेंट जोन्स में मरकजी हुकूमत से सलाह मशवरे के बगैर मकामी सतह पर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। दफ्तरों में काम करने के टाइमिंग्स भी घटाए जा सकते हैं। वजारत दाखिला ने रियासतों से कहा कि वो हुजूम को जमा होने से रोकने के लिए कदम उठाएं। वजारत दाखिला की गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सिर्फ लाजमी सरगर्मियां ही हो सकती हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर और पार्टी लीडरशिप के एडवाइजर अहमद पटेल का गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया है। बताया गया कि जिस्म के कई हिस्से नाकाम होने की वजह से उनकी मौत हुई। वो कोविड 19 के बाद की पेचीदगियों से जिद्दोजहद कर रहे थे। 71 साल अहमद पटेल की हालत कई दिनों से नाजुक थी। उन्हें पेचीदगियां पैदा होने पर 15 नवंबर को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। उनके बेटे फैसल ने बताया कि अहमद पटेल का सुबह 3:30 बजे इंतकाल हुआ। उन्हें कांग्रेस का ट्रबल शूटर समझा जाता था। उन्होंने कई मरतबा पार्टी को नाजुक सूरत हाल से निकाला। वो बहुत नरम मिजाज शख्स थे और सियासी हलकों में हर जमात में उनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। कांग्रेस लीडर ने 1 अक्टूबर को ट्विटर पर ऐलान किया था कि कोविड 19 के लिए वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वो गुजरात से राज्यसभा के रुकन थे। वो 8 मरतबा MP रहे, 5 मरतबा वो राज्यसभा के लिए और 3 मरतबा लोकसभा के रुकन रहे। फिलहाल वो कांग्रेस के ट्रेजरर थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, कई मरकजी वजीरों और दूसरे लीडर्स ने अहमद पटेल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सोनिया गांधी ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि अहमद पटेल के इंतकाल से वो एक साथी से महरूम हो गई हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए वक्फ कर दी थी। अहमद पटेल साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के बहुत करीब थे और 1985 और 1986 के पीरियड में वो वजीर आजम राजीव गांधी के पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे। अहमद पटेल ऐसे दूसरे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं जिनकी कोविड पेचीदगियों की वजह से मौत हुई है। 2 दिन पहले ही आसाम के साबिक चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई की कोविड पेचीदगियों से मौत हुई थी। अहमद पटेल के पसमानदगान में अहलिया, एक बेटी और एक बेटा शामिल है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लाइट शुरू करने के लिए एयर बबल इंतजाम पर बातचीत कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने 22 मुल्कों के साथ इस तरह के इंतजाम किए हैं, जिनमें UAE, जर्मनी, फ्रांस, UK, कनाडा, मालदीव, कतर, बहरीन, नाइजीरिया, इराक, अफगानिस्तान और जापान शामिल है। रियाज में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने बताया कि डायरेक्टर जनरल एयर ट्रांसपोर्ट अली रजब दूसरे अहदेदारों के साथ सऊदी ऑफिसर्स के साथ बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी अरब ने कोविड 19 सूरत हाल के मद्देनजर इंडिया से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर फिलहाल पाबंदी लगा रखी है।
तूफान निवार के मद्देनजर तमिलनाडु से 30,000 और पुदुचेरी से 7,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। तूफान के असर में तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश, खासतौर पर रायलसीमा के इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अलहूसियों से दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा, फौरी लगाम कसी जाए। ऑयल साइट पर हमले के बाद सऊदी अरब ने लिखा सिक्योरिटी काउंसिल को खत। अलहूसियों ने कहा दुनिया जानती है सऊदी अरब यमन में जारहियत कर रहा है, अगला हमला और ज्यादा दर्दनाक होगा। सीरिया में इसराइल का एक और हवाई हमला, ईरान के हामी 8 फाइटर्स हलाक। रशिया ने समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी जहाज को मार भगाया, मॉस्को का दावा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के दफ्तर की गेट को कार से टक्कर दे दी गई, दहशतगर्द कार्रवाई का शुबा। जो बाइडेन ने कहा ट्रंप हुकूमत ट्रांजिशन के अमल में संजीदगी दिखा रही है, नई हुकूमत गलत पॉलिसियां छोड़ दे, रूहानी ने किया मुतालबा। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव, इस्लामाबाद ने ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया, कहा पहले फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। रियासतों को रात के कर्फ्यू का इख्तियार, लॉकडाउन की इजाजत नहीं, वजारत दाखिला की नई कोविड गाइडलाइन। इंडिया के इन्फेक्शंस में 44,000 का इजाफा, सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का कोविड पेचीदगियों की वजह से इंतकाल। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।